میں بہت بدصورت تھی اور غریب بھی تھی، میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہ آتا۔ ایک دن اماں کہتی کہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، کل ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی۔ شادی کی رات شوہر کو دیکھا تو وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت مرد تھا۔ اس کو میری بدصورتی پر کوئی اعتراض نہ تھا اور مجھے بہت خوش رکھتا تھا۔ ایک دن رات کو شوہر کو ایک سٹور روم میں جاتے دیکھا اور جو اس کمرے میں ہوا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یوں تو میرا نام حبیبہ تھا، لیکن سب مجھے کالی کالی بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میرے ماں باپ بھی مجھے کالی کہہ دیتے تھے۔ مجھے ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت برا لگتا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی پیاری نہیں تھی۔ میرا رنگ بھی بہت کالا تھا اور میرے نقش بھی بہت موٹے موٹے تھے۔ میرے ماں باپ کی شکل مناسب تھی، میرے باقی بہن بھائی بھی دیکھنے میں اچھے نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا ہوا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ تم اپنی دادی پر چلی گئی ہو، اور میرے پاپا کہتے تھے کہ تم اپنی نانی پر چلی گئی ہو۔ ہم لوگ بہت غریب ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز بھی نہیں تھا، تو میرے بابا نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں کسی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا، صرف بیٹی دے سکتا ہوں۔ لیکن کرتے کرتے میری تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی، اور وہ تینوں بہنیں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھیں۔ کیونکہ ان کی شکل اتنی اچھی تھی اس لیے لوگ ان کو بیاہ کر لے گئے۔ ایک بہن نے تو میٹرک بھی کیا ہوا تھا، لیکن میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میری شکل و صورت اچھی تھی۔ میرے لیے کوئی رشتہ آتا ہی نہیں تھا۔ دو بہنوں نے تو انہی رشتوں سے شادی کی جو آئے تو میرے لیے تھے، لیکن میری جگہ ان کو پسند کر کے چلے گئے۔ میری زندگی میں اتنی تلخی تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیا یہ دنیا صرف خوبصورت لوگوں کے لیے ہے؟ بدصورت لوگوں کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انسان کسی سے کیا شکوہ کرے؟ میرے گھر والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، باقی بہنوں کی بھی تو شادی کر دی ہے۔ شادی پیسوں سے نہیں قسمت سے ہوتی ہے۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ اگر میری شکل اچھی نہیں تو میرے لیے جہیز ہی بنا لو، تاکہ کوئی مجھے جہیز کے ساتھ ہی لے لے۔ پر امی کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو جہیز بنانے کی ہمت نہیں ہے، اور اگر بنایا تو باقی بیٹیاں کہیں گی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دے رہے ہو۔ شاید ان کو بھی میری شادی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں ہی گھر میں رہ گئی تھی، ان کے گھر کے کام کرتی تھی۔ جب اپنی بہنوں کے بارے میں سنتی تو دل بہت جلتا تھا۔ اگر میری شادی وقت پر ہو جاتی تو آج میرے بھی بچے ہوتے۔ ان کے ہاں تو ہر سال بچہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ خوش تھے۔ میں روز رات کو آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے پوچھتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دنیا والے بہت برے ہیں۔ تیرے بنائے ہوئے لوگ میری بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ تیرے گھر کا رنگ بھی تو کالا ہے، لیکن یہ کالے رنگ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں دیکھتی تھی کہ میرے ماں باپ کو بھی میری شادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو وہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری کی ساری زندگی بدل کر رہ گئی۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ اب میرا وقت آ گیا تھا۔ میرے لیے رشتہ آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے لیے رشتہ تو آیا ہے، لیکن وہ کل ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے بابا نے کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، ہمارا کیا جائے گا؟ ویسے بھی وہ لوگ کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے لڑکا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں دور سے دیکھا ہے، تیری ہی طرح کالا ہے۔ میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ امی ابھی سے ہی اپنے داماد کو اس طرح کہہ رہی ہیں۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ شخص بھی میری طرح ہی دنیا کا ستایا ہوا ہوگا۔ میں اس سے شادی کروں گی تو ہم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دن دوپہر کے وقت آئیں گے اور دوپہر کی نماز کے بعد نکاح کر کے لے جائیں گے۔ لیکن جب میری ساری بہنیں بھی وہاں پر آ گئیں اور سارے رشتہ دار بھی، تو دلہے کو دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو دیکھ کر میری ماں نے کہا تھا کہ تیری طرح کالا ہی ہے، وہ بولا نہیں، وہ میرے دولہے کا ڈرائیور تھا۔ میرا دولہا تو بہت ہی زیادہ امیر، حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہو۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ سادگی سے نکاح کی رسم ہو گئی۔ میری ساری بہنوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ میرے سارے رشتہ دار مجھ پر رشک کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف امیر تھے بلکہ لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔ میرے شوہر کو دیکھ کر تو میری بہنیں ایسی ہو گئی تھیں کہ جیسے ان کے سر سے شروع ہوئی ہے اور پیروں پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ کہنے لگیں کہ ہم نے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی، اس کو لگتا ہے اس کو صبر کا پھل مل گیا ہے۔
हमें तो हमारे माँ बाप ने फकीरों के साथ ब्याह दिया है और उसकी शादी शहजादे के साथ की है, जो अमीर भी बहुत ज्यादा है और देखने में भी शहजादे जैसा लगता है। मेरे अंदर भी खुद एतमादी आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ सर उठाकर बैठी थी। आखिर ये मेरी दुआओं का सिला था। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सच कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मेरी किस्मत चमक गई थी। मेरी शादी ऐसे घर ऐसे शख्स से होना मेरे सारे खानदान की लड़कियों के मुंह पर एक कारी तमाचा था। आज उनके सर शर्म से झुक गए थे और मेरा सर फख्र से बुलंद है। लेकिन दिल ही दिल में यह भी सोच रही थी कि कहीं ये मुझसे शादी करने के बाद बदल तो नहीं जाएगा, कि ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला सीन तो नहीं हो जाएगा। फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था। जब अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ था तो आगे भी अल्लाह ने खैर ही करनी थी। मैं जब अपने घर आ गई तो वो घर बहुत बड़ा था, पूरा बंगला था। अगले दिन वलीमा की रस्म में सब ने यह घर भी देखा और वलीमा इतनी धूमधाम से हुआ जितनी आज तक हमारी कोई भी शादी नहीं हुई थी। हमारे खानदान की सबसे बेहतरीन शादी मेरी शादी को ही कहा गया। मेरा शौहर मेरे रिश्तेदारों से झुक के मिल रहा था, उनको बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, यह घर सिर्फ मेरे बेटे का है, ये यहाँ पर रहता है। मेरी सास ने जब ये बात सबको बताई तो औरतों के और भी मुंह खुल गए। वो कहने लगी कि एक तो लड़का उसको अच्छा मिल गया, अमीर खानदान मिल गया, ऊपर से घर भी अकेला। सास कहती है कि साथ नहीं रहूंगी, ये तो सारी चीजों की अकेली मालकिन है और घर में नौकर भी फिर रहे थे। मुझे तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया था। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर जरूर था कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा, अभी मेरा ख्वाब टूट जाएगा, अभी मुझे नजर लग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सारा कुछ ठीक जा रहा था। अगले दिन मैं अपने घर गई तो वहां मेरी सारी बहनें आई हुई थीं, क्योंकि आज मेरे शौहर की हमारे घर में दावत थी, इसलिए मजे के खाने पकाए जा रहे थे। मेरी सारी बहनें मेरे पास आ बैठी थीं। मुझसे पूछने लगी कि मुंह दिखाई में क्या मिला है। मैंने जब उनको अपनी मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो 2 बहुत ही बड़े बड़े और प्यारे प्यारे सोने के कंगन थे। उन्होंने कहा कि हमें तो 2000 देकर टरका दिया गया था। एक बहन को सोने की अंगूठी मिली थी, लेकिन वो भी इतनी बारीक कि पहनने से पहले ही टूट गई। यहाँ मेरे कंगन देखकर उनके मुंह खुल जाना बहुत ही नॉर्मल था। अम्मी ने सबको कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो तो सही, तुम्हारी बहन के नसीब खुल गए हैं, इतना अच्छा शौहर मिला है। हमें भी इतने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं। मेरी बहनों को भी तोहफे तहाइफ दिए गए थे। वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक बहन कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम्हें तो बहुत सलामी मिली होगी, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। मेरा शौहर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप कितने खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, आपका इतना बड़ा घर है, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती और जिस लड़की पे हाथ रखते वो आपकी हो जाती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो उसने कहा मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी थी। जैसा तुमने कहा, मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाती, पर मुझे कोई भी लड़की से नहीं करनी थी। मुझे किसी खास लड़की से शादी करनी थी जो कि तुम हो। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, अल्लाह तख्लीकार है। अल्लाह को खालिक मानते हैं तो फिर उसकी तख्लीक से नफरत कैसे कर सकते हैं? मुझे शौहर की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने इस घर में कुछ अजीबो गरीब होते हुए देखा, और वो ये कि मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया, वो कहीं भी नहीं था। और सुबह सुबह जब मैंने देखा तो वो बेड पर ही सो रहा था। मैंने कहा कि आप किस वक्त वापस आए? तो कहने लगा कि मैं कहीं नहीं गया था। उसने मुझसे सरेआम झूठ बोल दिया और मैं हैरान थी कि झूठ की वजह क्या थी। मैंने कहा मैं उठी थी तो आप कमरे में नहीं थे। तो कहने लगा कि शायद मैं पानी पीने गया था। उसे नहीं पता था कि मैंने उसको सारे घर में तलाश किया, तो फिर वो अचानक से कहां से आ गया। खैर, मैंने सोचा कि शायद कोई बात होगी, कोई काम होगा, इसलिए दोबारा उस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये रोज हो रहा था। एक नहीं तो दूसरी रात मेरा शौहर रात के वक्त कमरे से गायब होता था और सुबह सुबह वापस आ जाता था। सारी रात जाने कहाँ जाता था ये मैं नहीं जानती थी। पूछने पर झूठ बोलता था। समझ नहीं आ रही थी कि बात किससे करूं। फिर अम्मी को जब सब कुछ बता दिया तो अम्मी ने कहा कि क्यों पागल हो गई हो, शादी को 2 महीने हुए हैं और शौहर में कीड़े निकालना शुरू कर दिए। इतना अच्छा शौहर मिला है, तुम्हें तो इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा लेकिन वो जाते कहाँ हैं ये भी तो नहीं पता, और जब मैं पूछती हूँ तो मुझसे झूठ बोल देता है।
मेरी अम्मी ने एक निहायत अजीब बात कर दी। अम्मी ने कहा कि इतना बड़ा घर है, न सास का कोई चक्कर है, नौकर चाकर हैं, दौलत है, गाड़ियां हैं। तुम्हारा शौहर तो अगर कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तब भी तुम्हें उफ तक नहीं करनी चाहिए। अपनी बहनों को देखो, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास ससुर के काम करती हैं, और ये जो अपनी लुबना है उसके शौहर का तो कहीं चक्कर भी चल रहा है। मैंने कहा कि फिर वो कुछ क्यों नहीं कर रही, तो कहने लगी क्या करे, उसको तंग करेगी तो वो उसको तलाक दे देगा, फिर हमारे सर पर आकर बैठ जाएगी, इसलिए बर्दाश्त कर रही है। तुम भी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो। तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे साथ बेवफाई करे तब भी तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। मैं हैरान रह गई कि किस तरह की बात कर दी अम्मी ने। मैंने अपने शौहर से शादी घर और गाड़ियों के लिए नहीं की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कुछ है। फिर मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझसे शादी क्यों की थी, इतनी जल्दी क्या थी। वो कहने लगा कि दरअसल हमारे घर के बड़ों ने एक टाइम निकाला था कि उस टाइम तक शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि बचपन में मुझ पर काफ़ी जादू वगैरह करवाए गए थे और मैंने वो सारा टाइम ज़ाया कर दिया। सोचता रहा कि कर लूँगा, शादी हो जाएगी, और फिर जब सब कुछ सर पर आन पड़ा तो मुझे जल्दी जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। बड़े बड़े लोग इस तरह के बड़े बड़े तोहमात पर यकीन करते हैं। मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना पड़ता है। एक दिन अपने शौहर का पीछा किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तय खाने की तरफ जा रहा था। इस बड़े घर में तय खाना होना आम बात थी, ये उन लोगों का खानदानी घर था। मुझे लगा कि तय खाने में कोई भी नहीं जाता होगा। उस घर के इतने ज्यादा कमरे थे और हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, तो फिर तय खाने की किसी को क्या जरूरत होगी। लेकिन तय खाने की शक्ल देखकर लगता था कि वहां पर कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है। मेरा शौहर उसमें चला जाता था, मुझे छोड़ के वो तय खाने में जाया करता था, लेकिन उसका मतलब क्या था? अगर वो किसी काम से भी जाता है तो इस सिलसिले में तो अपने घर में उसने अपना स्टडी रूम बना रखा था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि घर में तय खाना भी है, मुझे तय खाने देखने का बहुत शौक है। तो कहने लगा, तुम्हें किसने कह दिया कि इस घर में कोई तय खाना नहीं है? यानी उसने फिर मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा कि मुझे नौकरों ने बताया। तो कहने लगा कि वो तय खाना नहीं है, वो तो एक छोटा सा स्टोर रूम है। वैसे भी तय खाने को हमने क्या करना है? मेरा शौहर बात बात पर मुझसे झूठ बोल रहा था और मेरी माँ के बकौल मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन झूठ तभी बोला जाता है जब किसी बहुत बड़ी बात को छुपाया जाता है, यानी जब कोई गड़बड़ होती है। इस घर में क्या गड़बड़ हो सकती थी? मैंने सोच लिया कि मैं अपने शौहर का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो तय खाने में क्यों जाता है। जब वो वहां जाएगा मैं भी अंदर जाऊंगी। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने जिंदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, मुझे जासूसी करनी नहीं आती थी, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एक हफ्ते बाद मेरा सर चकराने लगा। मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। मेरी अम्मी ने मुझे गिरने से पहले थाम लिया और पहले ही खुशी खुशी कहना शुरू कर दिया कि लगता है कोई खुशखबरी है। मेरी एक बहन भी आई हुई थी जिसको अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। कहने लगी, बड़ी किस्मत है तुम्हारी, जिसकी शक्ल अच्छी होती है उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, और जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी निकल आती है। मेरी माँ ने उसको कहा कि बस करो अपनी ये बातें, तुम चुप करके बैठ जाओ। मेरी माँ मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। जिस डॉक्टर के पास मुझे मेरी माँ लेकर गई थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, बल्कि मेरी वाहिद दोस्त थी जिसके साथ मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था। उसे देखकर बहुत खुशी हुई कि वो डॉक्टर बन गई है। वो ये भी जानकर बहुत खुश हुई कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत खुश हुई, कहने लगी कि अब उस घर में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जबकि मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जाते ही ये बात अपने शौहर को बता देना, वो बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन मैंने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई। मुझे आज ही अपने शौहर का पीछा करना था। रात का वक्त था। जब मेरे शौहर ने आंख खोली तो वो समझा कि मैं सो रही थी, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। मुझे महसूस हो गया कि वो दबे पांव उठा और जाने से पहले उसने मुझ पर कंबल डाल दिया और उसके बाद वहां से चल पड़ा। मैं भी दबे पांव उसके पीछे पीछे हो ली। मैंने देखा वो तय खाने की तरफ ही जा रहा था। जब वो करीब पहुंच गया तो मैंने एक सतून की आड़ ले ली और मैं उसको अच्छी तरह से देखने लगी। मेरे शौहर ने दस्तक दी, उसका मतलब कि अंदर कोई था जिसने दरवाजा खोलना था।
और दरवाज़ा खोला एक नहायत ही हसीन औरत ने। मेरे शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा शौहर अंदर चला गया, लेकिन जल्दी में दरवाजे को बंद करना भूल गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैं उनकी बात सुनने लगी, आज आने में देर क्यों कर दी? कहने लगा वो सो ही नहीं रही थी। उसने कहा कि कब तक ये काम चलेगा? जिस काम के लिए उसको लाए हैं वो कब होगा? ये लड़की माँ बन सकती है या नहीं? जल्दी जल्दी लड़की माँ बन जाए, उसकी औलाद हमें मिल जाए और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप उसके साथ रहते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर हमने अपना वारिस पैदा नहीं किया तो फिर हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अम्मी सारा कुछ बड़े भाई को दे देंगी। तुम्हें तो पता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। उसका मतलब वो औरत जो मुझे सास बताकर दिखाई गई थी मेरी सास नहीं थी और मेरा कोई जेठ भी था। बस एक बच्चा आ जाए फिर हम उसको क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमें तो सिर्फ बच्चे से मतलब है। लेकिन आपने इस काली लड़की से शादी क्यों की है? अगर हमारा बच्चा भी काला पैदा हुआ तो फिर क्या होगा? लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि यही मिल रही थी और कोई मिल भी तो नहीं रही थी। गरीब लोग हैं, इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब मुझे सारी गेम समझ आ गई थी, इसलिए मुझसे उसने शादी की थी, वरना यह मुझ जैसी लड़की को अपने घर में नौकरानी भी नहीं रखता। उसको सिर्फ औलाद चाहिए थी और ये मेरे शौहर की पहली बीवी थी जो उस तय खाने में छुपी हुई थी। ये बात शायद मेरी सास को भी मालूम नहीं थी। ये लोग मेरी सास को भी धोखा देने वाले थे और मुझसे मेरी औलाद लेकर मुझे जान से मार देते। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने शुक्र किया कि ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अपनी माँ को भी कह दिया कि ये बात किसी को ना बताना, क्योंकि इसके पीछे कोई बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं उन लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी। अपने कमरे में आ गई और आराम से ठंडे दिमाग से सोचने लगी कि मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। ये आराम से किसी भी टाइम मेरा काम तमाम कर देते और मेरे पीछे लड़ने वाला भी कोई ना होता। कौन था जो कोर्ट कचहरी जाता और मेरे लिए इंसाफ मांगता? ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए था? उनको मुझसे औलाद चाहिए थी और औलाद मेरे पास आ गई थी। मैंने अपनी दोस्त से राब्ता किया जो डॉक्टर थी। उसको मैंने सब कुछ बता दिया और फिर उसने ही मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, उनकी बहू को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा चालाक है। तुम अकेली उनसे कभी भी नहीं लड़ सकती। और तुम्हारे माँ बाप जो यहाँ तक कहते हैं कि शौहर बेवफाई भी करे तो उसके घर से वापस नहीं आना, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे? मेरी दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मैं अगले दिन अपने शौहर के सामने खड़ी थी। मैंने कहा आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ था, मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरा शौहर भी हैरान रह गया। मैंने रिपोर्ट भी दिखाई जिसके नीचे डॉक्टर की स्टैंप भी लगी थी। वो भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे पता था कि वो क्या करेगा। उसने मुझे अगले ही दिन तलाक दे दी और कहा मैंने तुमसे औलाद के लिए शादी की थी, अगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो तो मैं तुम्हें गले में डालकर ढोल नहीं बजा सकता। उसने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत दुख हुआ मुझे इस मुआशरे की सोच पर, बहुत अफसोस भी हुआ, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं मरना नहीं चाहती थी। अपनी औलाद क्यों देती मैं किसी और को? मैंने ये सारी कहानी एक खत में लिख दी और वो खत औरत ने अपने शौहर की असल माँ तक पहुंचा दिया जो अपने बंगले में अपने शौहर के साथ रहती थी। अपना फोन नंबर भी लिख दिया और खुद किसी ऐसी जगह चली गई जहां पर कोई भी मेरे साथ ना हो, मेरे माँ बाप और ना ही ये लोग। मैंने उसको कहा कि मेरी कोख में आपका पोता है, मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा है और आपकी बहू और बेटे ने मिलकर मेरे साथ ये खेल खेला है। उसने मेरे रहने का इंतजाम करवाया, मुझे पैसे भी बेचती रही, लेकिन मैं वापस कभी नहीं आई। आज मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ अपनी औलाद के साथ। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा है। मेरे शौहर के यहाँ अभी तक औलाद नहीं है और अब मेरी सास उन पर भरोसा भी नहीं करती। मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब मेरी अपनी जिंदगी है, कि जिस दुनिया में मैं पहले रहती थी वहां मेरे अपने भी मुझे बुरा ही कहते थे। कभी किसी ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, मुझे ये नहीं बताया कि मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं एक अच्छी जगह नौकरी करती हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ और अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की तमाम उंगलियों से। न जाने कौन सी उंगली पकड़कर माँ ने चलना सिखाया होगा। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक न कोई नाप सका है और न नाप सकेगा। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं।
دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1 جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2 جب وہ بوڑھی ہو جائیں ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3 جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا۔ کرو ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا۔ خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ۔ چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔